So when we talk about high-rise buildings, so what are the requirements we do have? We do have that the glass which is being used in those systems or those buildings, they should be safe, they should be adhering to heat and light requirements specified by the architect, and also the glasses which are being used there, they should be processed from a renowned or from an organization whose processing parameters should be complying to the standards. But in simpler words, Sheetal, what are you saying? मतलब इसको अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक मल्टी स्टोरेज बना रहा हूँ कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी विंडो के असेंबली में ग्लास को ले रहे हैं, वो ग्लास की जो आर्किटेक्ट ने स्पेसिफाई किया उसको ध्यान में रखते हुए, तो पता ही नहीं है उसको स्पेसिफाई क्या करा है, तो फॉर एग्जांपल देखिए हाई राइज बिल्डिंग है, लॉट ऑफ स्मॉलर टाउन्स देयर इज नो स्पेक. हाई राइज बिल्डिंग में अगर हम स्मॉलर टाउन्स में जाते हैं, देखिए हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि ग्लास सेफ होना चाहिए. सेफ बोले तो टेम्पर्ड होना चाहिए मिनिमम. अब हाँ मिनिमम. अब अगर हमारी उस बिल्डिंग की ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अगर रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें ये भी चाहिए कि अगर हम अंदर रह रहे हैं तो हमारे एसीज इफेक्टिव रहे, हीट और लाइट का मैनेजमेंट हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए मे बी वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट हो कि हम इसमें डबल ग्लेज्ड यूनिट्स को यूज़ करें. ये हमारी इसके ऊपर एड ऑन है. टेम्पर्ड ग्लास तो हम मिनिमम एक क्राइटेरिया रखकर चलते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए. क्वेश्चन पूछता हूँ मनीष, आज की डेट में इंसुलेटिंग ग्लास इन रेजिडेंशियल हाई राइज का परसेंटेज बढ़ा है या अभी भी I guess it is very, I see a trend of increase, yes, but मोटा मोटी not to that extent, sir. in my opinion 10%? in real estate is concerned, I guess less than 5%. Less than 5% is less using than IQ. 5%. That's And I'm it. doing projects across the country and internationally. Why And they are all using single glass. And Single from your- glass and also private residences नहीं, from मैं the उसकी प्राइवेट की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ अभी मल्टी हाँ तो स्टोरेज. मल्टी स्टोरी में in my opinion not more than 5%. Why Not be? more than 5%. It's single mostly. Very few are in DG. सिंगल मीन 6-8 mm टेम्पर्ड. मतलब 5, 8 6. तो बहुत ऊपर चले गए. अब 5, 6 6. 5 और 6 के बीच 5 में और there 6 are some luxury houses now they have started talking 6 to 8. Residential. So I like to Residential. add here very interesting thing which the concept we can actually educate our customers also. If you are using a PVC window and it is a single glass provided by the builder, you can actually upgrade it to double glass just by changing a small bead and the glass. Yes. And which is very cost effective also. So you don't have to replace the entire frame. You can just change the glass and the bead. What I've seen in the past experience and currently also, glass भी ना मतलब rather than choosing कि वो क्या use है glass का, aesthetics पहले आते हैं, फिर technicals आता है. मतलब one blunder what I see in the residential homes, अब लोग घर में reflective glass लगा देते हैं. अब घर में रिफ्लेक्टिव ग्लास मतलब फॉर द कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्टिव वो है जो मिरर जैसा दिखता है, बट उसमें तो बड़ा सिंपल है. दिन में इट इज द ऑपोजिट, अंदर से बाहर नहीं कुछ, बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता इन द लेमन्स लैंग्वेज. एंड रात में इट इज द ऑपोजिट, अंदर से मिरर बन जाता है, बाहर से सब कुछ अंदर दिखता है. इट इज द ब्लंडर फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस. मींस इन माय ओपिनियन रिफ्लेक्टिव ग्लास इज टेक्निकली meant for commercial buildings. It is not meant for residential. No, it's not only it's also the right direction. Right direction. अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिव यूज कर रहे हैं, it's a waste of वो एक अदर वो it's going more diving into the situation. But yeah, residential So, I'll hotels, sorry. hotels also for Yes. example, hospitals have never We'll used. take that as a some subject 2 and 3. Just before that, I like to complete the double glass unit. Yes, So this is possible only in UPVC. In aluminium, the challenge is there because all aluminium systems are designed for single glass and double glass to keep the cost low. So in aluminium, you do not have that possibility of upgrade most of the time. Close to hundreds of thousands of towers are coming up high rise in this country. The number is between 50 to 80,000 over the next 5 to 7 years. This is the calculation I did with somebody very renowned in this field. Mota moti, you are talking about a $50 billion industry for fenestration. Leave the facade out of it. Over the next 10 years. The question for high rise residential is, now that we know that there is a wind load, there is a pressure, there is a testing requirement, how many capable companies are there in our, I assume only organized sector can do this. Absolutely. Yeah, if I want to complete 10,000 windows in 6 months, only a few people have the capability. So Manish, how many companies in this country, and there were only a few, maybe there are now more than a few, who have the capability to do wind load, testing, design, then produce and then install? See, I mean, Is there scope for a lot more to come? Yeah, so I want to answer it differently
to answer to your question, in my opinion, it'll be a single digit number of companies in India to do that kind of a volume, technically right. But in my opinion, I always think that move along together means अकेले बढ़े तो क्या बढ़े. So what I'm trying to say is different in this. Just to add, so अगर again sir sorry but as a सूत्रधार अगर बिकॉज एक हर चीज में ना एक चेक पॉइंट बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है. इंडियंस एंड ऑल राउंड द वर्ल्ड एज ह्यूमन बीइंग हमें चाहिए कोई देख रहा है तो हम सही करते हैं, राइट. सो इफ देयर इज अ वॉच डॉग वॉचिंग समथिंग, सो आई गेस अ स्मॉलर कंपनी कैन ऑल्सो डू अ बेटर जॉब इफ दे आर एक्सप्लेन्ड वेल कि ऐसे करना है, बिकॉज उनको नहीं पता है इसलिए नहीं कर रही है. सो रादर अ कंपनी हु हैज जस्ट स्टार्टेड, इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं कर सकता. देयर इज अ पॉइंट कि अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए कि यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू इंस्टॉल दिस, तो वो कर सकता है. I disagree with you, Manish here. I also don't agree with you. Because उडमा का अगर आपको रोल पता होगा तो I think it's been more than 10 years. No, More than 10 years. Of course, we have been doing this exercise with lot of people. The question is not that; it is the intent. And दूसरा चीज है डंडा. मैंने तो पहले ही बोला ना आपको तो कि अगर कोई वॉच डॉग है देखने वाला, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वाइटली, द क्वेश्चन हियर इज कि हम सिखा रहे हैं और वो नहीं सीख रहे, सेपरेट स्टोरी है अभी के लिए. दो मर्जी है नहीं सीखना. हाँ, दो टॉपिक हैं. पॉइंट नंबर 1, अमित इज सेइंग कितनी कंपनी है, वो हम सबको मालूम है. I have. Let me also come in here. I mean, let me be balanced. Most of us architects will prefer aluminum for many reasons. सर वो रीजन आज मेरे को समझ नहीं है. नहीं, they are purely aesthetic reasons. I'm saying. Purely aesthetic reasons. तो वही तो बात होगी फिर जो मैं कह रहा था कि aesthetic coming on to the point of how many companies, ठीक है. अगर मैं सिस्टम एल्यूमिनियम में चले जाऊं, ठीक है, सिस्टम एल्यूमिनियम लकीली अभी भी मार्केट में इज मोर कंट्रोल्ड. यूपीवीसी में तो गंद मच गया. I will disagree. यूपीवीसी में आई एम टोटली कंफ्यूज. आई गेट every new day somebody who walks in and says sir मैंने यूपीवीसी शुरू कर दिया. हां मैं भी यूपीवीसी क्या हो रहा है यूपीवीसी में. there is a problem that the entry barrier seems to be very low. हर आदमी शुरू कर दे रहा है. सर उल्टा है, एल्यूमिनियम का एंट्री बैरियर यूपीवीसी और भी कम है, और भी कम है. सर एक हेक्सा कटर लेके आना है सर वो. सर एक मिनट, वो आप सिस्टम एल्यूमिनियम की बात नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं. मैं एल्यूमिनियम वाले में आज की डेट पे फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 years I have never gone across और हमने कोई सिस्टम काटने वाले को लगाया हो. सर ना मेरा बिल्डर लगाने को तैयार है, ना मेरा क्लाइंट लगाने को तैयार है. लेकिन यूपीवीसी में फिर भी वो बना के विंडो ले आता है. नहीं सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है इसमें. पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद प्रोबेबली जो भी आप बोलोगे सही होगा. आपने बोला सिस्टम एल्यूमिनियम. सिस्टम एल्यूमिनियम का मतलब क्या है सर? सिस्टम एल्यूमिनियम का मतलब क्या है? एक बार लोगों को समझ तो आए, ये वर्ड बड़ा चलना शुरू हो गया है. जैसे वाईपी सर ने कहा कि लोकल एल्यूमिनियम और सिस्टम एल्यूमिनियम, तो सिस्टम एल्यूमिनियम का मतलब क्या है बताओ, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा. Okay, definition of system aluminum as per an architect, and I'm thinking Deepak is not speaking for the entire architecture fraternity, but I would say largely. Okay. Fair point? Yeah. No, also, I mean, What is system aluminum? When I say largely, aluminum में there are a set of companies that I can go to. I mean, I don't want to name them, yes, but 8, 10, 12 companies, right, maybe 15 कंपनी होंगी, ठीक है. उनके पास में उनके नाम मालूम है, और बाकी उसका कंपटीशन क्या है, वो आदमी बैठा है, वो खुद लाके वहीं पे साइड पे काटना शुरू करता है एल्यूमिनियम पे, ठीक है. आई कैन सी द डिस्टिंक्शन वेरी क्लियरली. एक डिफरेंशिएशन हो गया कि साइट पे नहीं बनता, फैक्ट्री में बनता है. ये आपका कहने का मतलब है सर? बिल्कुल ठीक है सर, आगे चले. ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये है. एंड दूसरा, दे आर ब्रांड्स, दे आर रिलेटिवली वेल नोन ब्रांड्स. अच्छा, ओके. विच आई अंडरस्टैंड एंड आई नो कि अगर ये ब्रांड लेके आ रहा है तो ये सही है. मैं तो शुरू कर ही दिया कि नेम द फ्यू. सो ऐसा नहीं है, आई नो कि ये नाम है. व्हेन आई मीट दीज एल्यूमिनियम पीपल, ठीक है, जो मेरे पास आते हैं डिस्कशन करने, अल्टीमेटली देयर सेल्स टीम एंड देयर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग देम सीम फार मोर, आई मीन से आर्टिकुलेट एंड नॉलेजेबल compared to most people. So this is where I come from, yaar. So this is what, no, but Manish, you can laugh on a at it. serious No, Manish, basis, you seem to be people laughing who at come to him as an architect, people, any architect, and Are they people- are more influenced by Amit their. sir, एक सेकंड, with due respect to Deepak sir and the architect fraternity, मेरे को अभी दो ही एग्जांपल मिले हैं कि एक वो साइट पे नहीं बनाता, फैक्ट्री में बनाता है, और एक ब्रांड है विच आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि पैसा खर्च कर दिया. दैट वाज जस्ट अ पॉइंट सर. That's okay. एंड 3, देयर आर बेटर पीपल सेलिंग इट. तो अभी तक उसके अलावा सिस्टम एल्यूमिनियम में कोई डिफरेंस नहीं पता चला है. एक सेकंड के लिए हम बात करें अगर, तो सिस्टम एल्यूमिनियम क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव बात करने का ये था सर. सो वन, देयर आर ब्रांड सर which are international and some of the homegrown brands which have become system aluminum and they are doing a good job. That's okay. Correct. But वो ब्रांड
और कोई बंदा मार्केट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट सेक्शन, बोले तो पहाड़गंज जाके खरीद पहाड़गंज सकते हैं। जाके उसने अपना सेक्शन ले लिया। अगर उसने सिस्टम वहां से वो अच्छा प्रोफाइल लेके आया, उसकी राइट क्लिट लगा रहा है उसके अंदर, राइट गैस्केट लगा रहा है और राइट हार्डवेयर लगा रहा है, क्या वो सिस्टम एल्यूमिनियम नहीं है सर? मेरी प्रॉब्लम ये है, आई नो ब्रांड्स, सो आई हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रस्ट। राइट सर। UPVC, you have to handle UPVC. UPVC में I have a problem. The point that you were making, उसने नहीं लगाया, वो लगाया, मैं नहीं जानता। UPVC में मे तो भी आप 4-5 लोग बताएं brand problem aluminium क्या है? में, but मेरे को एल्यूमिनियम में कैसे Just जान the- गए? नहीं, एक ब्रांड ट्रस्ट। brand trust है। अमित, Aluminium में वो the brand- point that you are trying to get at is UPVC में if a brand trust- brand is a well known brand, मेरा UPVC यही कहने का मतलब है, अभी और- जो मार्केट के अंदर डिफरेंशिएशन हो रही है यूपीवीसी और एल्यूमिनियम की, वो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो क्या रहा है, एक फील गुड फैक्टर आ रहा है एल्यूमिनियम में, जैसे सर कह रहे हैं, और एक इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं, उन्होंने नो डाउट दे हैव अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, बट दे हैव मार्केटेड इट वेल, दे हैव अ मार्केटिंग करके, और प्रोडक्ट बेकार होगा तो वैसी कंपनी नहीं कर Correct. सकती है, राइट? सो इट गोज हैंड इन हैंड। Correct. So what I'm trying to say is people are as a education point to all the fraternity कि क्या सिस्टम एल्यूमिनियम है वो समझना जरूरी है, not just the architect, who's the end user So, also. let's take YP's take on system aluminum. Before that, I would like to ask another question on UPVC. जो आपके apprehensions हैं, आप कह रहे हैं कि UPVC is having some problems. So I like to understand. problems. नहीं, I am having problems. So whatever it is, Yeah. let the user understand what is the issue with UPVC. Because I have been a UPVC fan for 30 plus years. I would like to challenge anybody in this country to prove that UPVC is not good.